कितना बज रहा है? 4-5 मिनट स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट और। Good morning, students. Today we'll discuss about the ventricles of the brain. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में कोई न कोई वेंट्रिकल जरूर पूछ जाते हैं. इनकी बाउंड्री, इनके रिसेस, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बहुत ही जरूरी है आपको जानना. तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए. ये सारे वेंट्रिकल के हमने यूट्यूब में भी ऑलरेडी डाल चुके हैं. आप उसकी भी हेल्प ले लीजिएगा बाद में. पहले यहाँ समझने की कोशिश कीजिए वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन. The brain is watched by cerebrospinal fluid. Inside the brain, there are spaces filled with cerebrospinal fluid. So one thing, the brain watched in the CSF, and this CSF within the brain, it is present in the ventricles. Ventricles are the space which are filled with the cerebrospinal fluid. So there are 4 ventricles. There are 2 lateral ventricles are in the brain hemisphere. So दो lateral ventricle है, 2 lateral ventricles, and third ventricle in the diencephalon, and 4th ventricle is between the pons, open part of the medulla oblongata, and cerebellum. So there are 4 ventricles: third ventricle, 4th ventricle, and 2 lateral ventricles. The third and 4th ventricles are connected by the cerebral aqueduct. Here you can see. This part, this is inverted C shape. This part, this is lateral ventricle, and here
This is third ventricle, and here is fourth ventricle. This is fourth ventricle, and this is outline of the cerebrum. Here is cerebellum. Other tissues are removed. Only ventricles are present in this diagram. So you can see this part. This part is lateral ventricle, and here is interventricular foramen. Lateral ventricle is connected with the interventricular foramen. So this is third ventricle. So this is lateral ventricle, third ventricle, fourth ventricle, and here the ventricles are connected. Ventricles are connected with lateral ventricles are connected with the third ventricle through interventricular foramen. This is interventricular foramen of Monro. Interventricular foramen, and here third ventricle is connected with the fourth ventricle through cerebral aqueduct. This cerebral aqueduct. This is under view. Here, same thing. This is posterior horn. This is lateral ventricle. Lateral ventricle. Here is third ventricle. This is fourth ventricle. This is interventricular foramen. This is cerebral aqueduct. Here you can see this is third ventricle. Here is lateral ventricle to lateral ventricle, third ventricle, cerebral aqueduct, and this is fourth ventricle. This is superior view. In another diagram, you can see same thing. There are two lateral ventricles, one in each hemisphere. सेरेब्रम के दो हेमिस्फीयर हैं, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर. एक एक हेमिस्फीयर में एक एक लैटरल वेंट्रिकल. तो ये लैटरल वेंट्रिकल हो गया, और दोनों हेमिस्फीयर के बीच में होती है थर्ड वेंट्रिकल. ये है थर्ड वेंट्रिकल. इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन. ये है फोर्थ वेंट्रिकल. फोर्थ वेंट्रिकल. दिस इज एंटीरियर व्यू. दिस इज एंटीरियर व्यू. अगर आगे से देखिए तो हमें ऐसे दिखता है. दिस इज कामा शेप. you can see lateral ventricle. Here is third ventricle, interventricular foramen. Here is fourth ventricle. Now we'll discuss detail of the third ventricle. तो थर्ड वेंट्रिकल की डिटेल में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं क्या है. Rich cavity of Dianthecla, and it lies in midline slit-like. It lies between two cerebral hemispheres, between the thalamus and part of the hypothalamus. So between thalamus and hypothalamus of each side, and is lined by ependyma. Ependyma, and it is traversed by interthalamic adhesion. तो इसी कैविटी के बीच में ये स्पेस है, कैविटी है, इसी में एक है इंटरथैलेमिक एडिशन, जिसके थ्रू ये दोनों थैलेमस से अटैच होते हैं. और ये कम्युनिकेशन, ध्यान से देखिए, ये है, दिस इज थर्ड वेंट्रिकल. इसके कम्युनिकेशन देखिए, एक तो कम्युनिकेशन ये दिख रहा है, एरो देखिए, एरो ये वन यहाँ पर है. ये है एंटीरियरली विद द लैटरल वेंट्रिकल थ्रू इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मोनरो. तो इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मोनरो के थ्रू दिस थर्ड वेंट्रिकल इज कनेक्टेड विद द लैटरल वेंट्रिकल. और पोस्टेरियरली देखिए, ये है पोस्टेरियरली दिस पार्ट विद फोर्थ वेंट्रिकल टू सेरेब्रल एक्विडक्ट. ये फोर्थ वेंट्रिकल के साथ में है सेरेब्रल एक्विडक्ट. फोर्थ वेंट्रिकल टू सेरेब्रल एक्विडक्ट. तो कम्युनिकेशन में देखिए, इट कम्युनिकेट विद द
lateral ventricle and fourth ventricle through lateral ventricle through interventricular foramen and fourth ventricle through cerebral aqueduct. अब इसकी बाउंड्री देखते हैं इस डायग्राम में। ये है, ये एंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट। तो एंटीरियर पार्ट यहाँ होगा, पोस्टीरियर पार्ट इधर होगा। तो एंटीरियर पार्ट ये, इस सेक्शन में एंटीरियर पार्ट यहाँ पर है। तो ये बाउंड्री देखिए, लेटरल वॉल, दिस इज लेटरल वॉल, ये लेटरल वॉल है। लेटरल वॉल कौन बना रहा है? हाइपोथैलेमिक सल्कस डिवाइड्स इनटू लार्जर अपर एंड स्मॉलर पार्ट। ये दिस इज हाइपोथैलेमिक सल्कस, ये सल्कस देखिए, ये है हाइपोथैलेमिक सल्कस। तो ये लेटरल वॉल है, पूरी लेटरल वॉल। लेटरल वॉल को थैलेमस और हाइपोथैलेमस बना रहे हैं। इसी को डिवाइड करने वाली, इन दोनों को डिवाइड करने वाला ये स्ट्रक्चर है, ये है हाइपोथैलेमिक सल्कस। ध्यान से देखिए कहां तक से फैला हुआ है। ये है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन और ये है सेरेब्रल एक्विडक्ट। तो ये है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन टू सेरेब्रल एक्विडक्ट। So lateral wall is divided by hypothalamic sulcus, and this sulcus extends from the interventricular foramen to cerebral aqueduct. So it is divided into two parts, upper and lower. Upper part is thalamus. Upper larger part, medial surface of the anterior two-thirds of the thalamus. This part is thalamus. थैलेमस, और ये है नीचे हाइपोथैलेमस। दिस इज हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस, थैलेमस ऊपर है, हाइपोथैलेमस नीचे है। थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बीच में एक सल्कस है जो इस लेटरल वॉल को पूरे डिवाइड किया, थैलेमस और हाइपोथैलेमस में। इस सल्कस का नाम है हाइपोथैलेमिक सल्कस, ठीक है ना, हाइपोथैलेमिक सल्कस। अब हाइपोथैलेमिक सल्कस कहां से कहां तक एक्सटेंड करता है? एक्सटेंड करता है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन टू सेरेब्रल एक्विडक्ट, टू सेरेब्रल एक्विडक्ट। ये होगा इसके दो लेटरल वॉल। नाउ एंटीरियर वॉल में देखिए, एंटीरियर वॉल इज फॉर्म्ड बाय एंटीरियर कॉलम ऑफ द फॉर्निक्स। इसमें है एंटीरियर कॉलम ऑफ द फॉर्निक्स। इस डायग्राम में देखिए तो ये है फॉर्निक्स लिखा हुआ, ये देखिए फॉर्निक्स, ये फॉर्निक्स, ये है फॉर्निक्स। This is fornix. The anterior part of the anterior column of the fornix here, this part, ये इसकी anterior wall बना रहा है। Anterior commissure, this is anterior commissure. इसमें commissural fibers होंगे, ये anterior commissure. And this part is lamina terminalis. So from here to here, this is anterior wall. Anterior column of the fornix, anterior commissure, and lamina terminalis. So this part is anterior wall. And posterior wall lies here. Posterior wall is formed by pineal gland. This is pineal gland. Posterior commissure. Here is posterior commissure. And beginning of cerebral aqueduct. So from here to here, this part. यहाँ से यहाँ तक posterior wall. ये है posterior wall. ये हो गई anterior wall. Now roof. This is roof. Roof is superior wall. Roof is formed by एपेंडाइमा। Here you can see this is टीला कोराइडिया, यहाँ लिखा हुआ टीला कोराइडिया। ये इसकी लाइनिंग जो अंदर से है यहाँ पर, ये एपेंडाइमा। तो एपेंडाइमा स्ट्रेचिंग अक्रॉस टू थैलेमाई, तो ये है एपेंडाइमा। स्ट्राया मेडुलरिस थैलेमाई एंड टीनिया थैलेमाई, ये भी होंगे। एंड फ्रॉम इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन टू हैबेनुलर कमिसर। तो ये एक्सटेंड करता है रूट, यहाँ से ये है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन से ऐसे आइए, ये यहाँ पर है हैबेनुलर कमिसर। यहाँ पर आपने देखा पोस्टीरियर कमिसर, दिस इज पोस्टीरियर कमिसर, ये लिखा हुआ है यहाँ पर पोस्टीरियर कमिसर। तो पिनियल बॉडी के ठीक नीचे है पोस्टीरियर कमिसर। कमिसर फाइबर्स होंगे, दोनों हेमिस्फीयर कनेक्ट करते हैं। और इसके बाद ये पिनियल ग्लैंड है। पिनियल ग्लैंड के ऊपर देखिए यहाँ पर रेसिस नीचा है इसके पास, यहाँ पर एक कमिसर और होता है, दैट इज हैबेनुलर कमिसर।
तो इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन टू हेवेनोलर कैमिसर, यहां से यहां तक दिस स्ट्रक्चर इज रूफ एंड इज फॉर्म्ड बाय इपेंडाइमा, ये इपेंडाइमा, ठीक है। और ऊपर तक जाइए तो इपेंडाइमा हो गया, टीला कोराइडिया हो गया, और ये ऊपर आ जाइए, ये इपेंडाइमा, इसके बाद फॉर्निक्स हो जाएगा। अच्छा, फ्लोर देखिए, फ्लोर इज फॉर्म्ड बाय, फ्लोर यहाँ से यहाँ तक ये फ्लोर होगा, ये पूरा पार्ट फ्लोर होगा। तो फ्लोर इज फॉर्म्ड बाय, आगे से चले तो ऑप्टिक कियाज्मा, दिस इज ऑप्टिक कियाज्मा, दिस पार्ट इज ट्यूबर साइनेरियम, यहाँ पर ट्यूबर साइनेरियम है, ऑप्टिक कियाज्मा के बाद ट्यूबर साइनेरियम, फिर इन्फेंडिबुलम, इन्फेंडिबुलम ये है पिट्यूटरी स्टाक, और फिर यहाँ पर आ जाती है मेमोरी बॉडी, मेमोरी बॉडी, दिस इज मेमोरी बॉडी, दिस इज मेमोरी बॉडी, और यहीं पर पोस्टीरियर परफोरेटेड सबस्टेंस होगा, पोस्टीरियर परफोरेटेड सबस्टेंस हियर, एंड tegmentum of this part is part of midbrain, that is tegmentum of the midbrain। तो यहाँ से यहाँ तक midbrain है, ये इसका टेक्टम पार्ट हुआ ऊपर का, ये नीचे का tegmentum, दिस इज tegmentum, tegmentum of the midbrain। तो यहाँ से है tegmentum of midbrain, memory body, tuber synovium, infundibulum, optic chiasm। ये यहाँ से यहाँ तक ये दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द फ्लोर ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। नाउ एक्सटेंशन, रिसेस ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल का एक्सटेंशन, वेंट्रिकल कहाँ एक्सटेंड कर रही है, तो इसके 5 एक्सटेंशन है, देयर आर 5 एक्सटेंशन। तो कौन कौन से हैं? इन्फेंडिबुलर, दिस इज इन्फेंडिबुलर, ये इन्फेंडिबुलर रिसेस हियर, infundibular recess, this extension, and here is optic recess, this is optic recess, here is anterior recess, and suprapineal, here is pineal recess, and this is suprapineal recess. So these are 5 recesses. Here you can see this is choroid plexus and tila choroidea of the third ventricle. This is third ventricle here. This is thalamus. This is hypothalamus from the lateral wall. This is third ventricle. You have seen in a previous slide. This is lateral wall. This is lateral wall. यहाँ पर hypothalamus sulcus होगा, ये जिस लेवल पर, और ये ऊपर है thalamus और नीचे है hypothalamus। तो ये है थर्ड वेंट्रिकल। इसके रूप में आपने देखा, रूप में क्या क्या स्ट्रक्चर, रूप में इपेंडाइमा, तो ये है इपेंडाइमल लाइनिंग, और ये है कोराइड प्लेक्सस, इपेंडाइमल लाइनिंग, कोराइड प्लेक्सस, और ऊपर में है फॉर्निक्स, बॉडी ऑफ द बॉडी। तो यहां से ये रूप के स्ट्रक्चर हो, रूप। अगर इसी को देखें कोराइड प्लेक्सस को, ये है प्लेक्सस ऑफ कैपरी, ये है प्लेक्सस ऑफ द कैपरी, is covered by pia mater, which is ependyma, line. So this is tila choroidea. Here is choroid plexus, and this is tila choroidea. That means choroid plexus plus ependyma form the tila choroidea. Clinical importance: obstruction of the third ventricle. If in previous lecture you have seen, it communicates anteriorly, anterosuperiorly with the lateral ventricle and posteriorly with the fourth ventricle through cerebral aqueduct and anterosuperiorly through the foramen of the molar. If there is any obstruction due to any mass, then what happens? It increases intracranial tension in the adults, and hydrocephalus in children, head become enlarged due to obstruction. The ventricles become enlarged, and ultimately head become enlarged, hydrocephalus, and it is detected by use of the ventriculography. By ventriculography, it can be detected. Tumors, hypothalamic syndrome, tumors, if present tumor here, it compresses the structures of the lateral wall.
hypothalamus. If hypothalamus is compressed, then hypothalamic syndrome occurs. And importance in localized region that deviates it from the midline. And also this ventricle due to ट्यूमर सपोज दिस इज वेंट्रिकल, इधर एक ट्यूमर है, ये ट्यूमर इसको डेविएट कर देगा। सपोज राइट साइड में है तो ये कैविटी का डायरेक्शन लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड डेविएट कर देगा। नाउ फोर्थ वेंट्रिकल, इट इज टेंट shaped cavity of the hind brain placed in posterior cranial fossa between the pons and upper part of the medulla and cerebellum. It is triangular in sagittal section. अगर सेक्शन में काटे तो ट्रायंगुलर दिखेगा। हॉरिजॉन्टल सेक्शन में it is rhomboid shaped. It is continuous below with the central canal of the medulla, above with the cerebral aqueduct. तो ये communicate कर रही है। This fourth ventricle communicates inferiorly with the cerebral aqueduct, superiorly with the cerebral aqueduct, and inferiorly with the central canal of the medulla. ये भी कम्युनिकेट कर रही है ऊपर और नीचे। ऊपर थर्ड वेंट्रिकल से cerebral aqueduct और नीचे कर रही है सेंट्रल कैनाल ऑफ द मेडुला। अगर इसकी बाउंड्री देखें तो लेटरल बाउंड्री इज फॉर्म्ड बाय ये है inferior cerebellar peduncle, inferior cerebellar peduncle, gracile and cuneate tubercle, and superiorly superior cerebral peduncle. And floor is formed by upper part to converging superior cerebral peduncle and superior medullary velum. Lower part inferior medullary velum, and here in inferior medullary velum there is foramen magendi present in the medial plane. Median plane में foramen magendi होगा। तो ये टेंट शेप होगी, ऐसे ऐसे है ना, तो रूफ टेंट टाइप होगा। लेटरल वॉल ये बना रही है, रूफ टेंट जैसा होगा। तो अपर पार्ट ये हो गया, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट ऐसे है, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। ये अपर पार्ट दो जो सेरेब्रल पेडंकल आ रहे हैं, सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल और सुपीरियर मेडुलरी वेलम बनाएगी, और नीचे लोअर पार्ट में इंफीरियर मेडुलरी वेलम। और इसी इंफीरियर मेडुलरी वेलम में बीच में होगा एक फोरामेन, दैट इज फोरामेन ऑफ मेजेंडी, और लेटरल साइड में दो फोरामेन होते हैं, उनका नाम है फोरामेन लस्ट्रा। इसके फ्लोर कौन बना रहा है? फ्लोर अपर पार्ट, अपर ट्रायंगुलर पार्ट, लोअर ट्रायंगुलर पार्ट एंड इंटरमीडिएट पार्ट। फ्लोर में देखें तो सबसे बीच में एक मीडियन सल्कस होगा, फिर मिड लाइन में मीडियन सल्कस, फिर मीडियल एमिनेंस, सल्कस लिमिटेंस, फिर वेस्टिबुलर एरिया, फिर सुपीरियर फोबिया, उसके ऊपर लोकस सेरेलियस, लोकस सेरेलियस में है सेबस्टियन फेरिजिनेसा, और नीचे आइए तो इंफीरियर फोबिया, इसी में फेशियल फॉलिकुलस, हाइपोग्लॉसल ट्रायंगल, vagal triangle, and tinea and obex. These structures present in the floor. Here you can see this is floor. ये इसकी lateral boundary है, lateral boundary, ये है floor. फ्लोर में देखिए ये है मीडियन सर्कस, बीच में मीडियन सर्कस, ये दिस इज मीडियन सर्कस है देखा, और दूर एक सर्कस और भी है, ये देखिए यहाँ पर ये है सर्कस लिमिटेंस मीडियन, और इसके बीच में है मीडियल एमिनेंस, दिस इज मीडियल एमिनेंस, इसके ऊपर है फेशियल फॉलिकुलस, ये है सुपीरियर फोबिया, दिस इज लोकस सेरेलियस। यहाँ पर देखिए तो ये है इंफीरियर फोबिया, ये है वेगल ट्रायंगल, दिस इज वेगल ट्रायंगल, एंड हियर इज हाइपोग्लॉसल ट्रायंगल, हियर इज हाइपोग्लॉसल ट्रायंगल, दिस इज वेगल ट्रायंगल, एरिया पोस्टिमा, दिस इज एरिया पोस्टिमा। हियर आर this area is here you can see this is vestibular area, this area is vestibular, lateral area is vestibular area, this area is vestibular area. Here is stria medullaris, so these structures from the floor.
Now angles of the fourth ventricle, superiorly continuous the cerebral aqueduct and inferiorly continuous the central canal of the closed part of the medulla, and two lateral angles are the one on each side across dorsal surface of the inferior cerebral plexus. Now recess. There are two lateral recesses. Reach up to the flocculus. So recess of the fourth ventricle are two lateral ventricles, one median dorsal and two lateral dorsal recesses. So two lateral recesses are that reach up to the flocculus, open into the subarachnoid space of the cerebellopontine angle as foramen of the Lusca. Median dorsal recess into white core of the cerebellum just above the nodule, and two lateral dorsal recesses, one on either side of the median dorsal recess, project above the inferior medullary velum. Here you can see these are the two lateral recesses. These are the two lateral recesses. This is dorsolateral recess and dorsomedian recess. So ये है ये this is fourth ventricle. Now tila choroidea of the fourth ventricle. Double layered fold of the pia mater between the vermis and lower part of the fourth ventricle form the tila choroidea. Dorsal layer line inferior vermis and get refracted upon itself from the ventral layer. Laterally continuous with the pia mater covering cerebral hemisphere. Ventral layer is continuous because the pia mater covering dorsal medulla. Here you can see this is inferior colliculus, this is inferior colliculus, ये है तो ये आपको दिख रहा है ये एक्चुअली रूफ है, रूफ में ऐसे है, रूफ ऐसे ये अपर पार्ट, दिस इज लोअर पार्ट, this is superior part, from here to here superior, this is inferior, and this is here is you can see this is choroid plexus, here is on lateral side there is foramen lusca, you can see this is foramen lusca, and here is foramen magendi, and here you can see these relations, here lingula lies and this is nodule. ये है upper part, this is lower part of the roof. As you know, roof upper part is formed by superior medullary velum here, and this is inferior medullary velum. Now lateral ventricle. It is cavity of the cerebral hemisphere. It is C-shaped. Its capacity is 7 to 10 ml, and it has 3 horns and central part. So lateral ventricle में 3 horns है, central part है. Anterior horn extend करता है frontal lobe में. Posterior horn extend the occipital lobe, and inferior horn in the temporal lobe. तो आपने cerebellum पढ़ा ही है, cerebellum के हिसाब अगर ध्यान से सोचिए तो उसमें एंटीरियर हॉर्न कहाँ जाएगा, एंटीरियर हॉर्न आगे जाएगा फ्रंटल पार्ट में, पोस्टीरियर ऑक्सीपिटल लोब में जाएगा, और पोस्टीरियर इन द ऑक्सीपिटल लोब और इंफीरियर टेम्पोरल लोब, इसको सेंट्रल पार्ट इन दी पैराइटल. दिस इज सी शेप lateral lobe. तो यहाँ देखिए ये है इतना एंटीरियर हार्न, इंटरवेंट्रिकुलर फोरम, इसके आगे का पार्ट एंटीरियर हार्न, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट ये पार्ट, दिस इज सेंट्रल पार्ट, पीछे का एक्सटेंशन दिस इज पोस्टीरियर हॉर्न, दिस इज इंफीरियर हॉर्न. Inferior horn, here is posterior horn. This is superior view. ऊपर से देखें तो ऐसे दिखता है. ये है lateral horn, ये lateral horn. Here is third ventricle,
So this is lateral ventricle. Here, lateral ventricle has this is anterior horn. This is inferior horn. This is posterior horn. This is lateral ventricle. और ये है interventricular foramen. यहाँ से कनेक्ट है. ये है यहाँ से यहाँ तक. This is third ventricle. This is fourth ventricle. ये fourth ventricle में foramen opening होगी. Foramen mesentery, foramen lusca on that side. So superior view of the ventricular system. There is lateral ventricle, anterior horn in front of the lobe, anterior lobe, frontal lobe, anterior horn. Posterior horn in the occipital lobe. This is posterior horn. Inferior horn. This is inferior horn in the temporal lobe, and the body in the parietal lobe. This is body in the parietal. The inferior and posterior horns are connected in the trigone. This is trigone. Inferior horn. This is inferior horn. This is posterior horn. और ये यहाँ से triangular area है trigone. This triangular area. This is triangular area. This is trigone, where inferior and posterior horn connected with the body. This is dissected brain, cerebrum. Here you can see. From here to here, this is the lateral ventricle. Anterior, this is anterior horn. This is central part. This is posterior horn. This is inferior horn. And here you can see one important thing. यहाँ पर ये कार्पस कैलोसम होगा. ये कार्पस कैलोसम, and ये part जिसकी concavity है. This part. This is called body of the caudate nucleus. This is body of the caudate nucleus. ये ऐसे सी शेप है. ये यहाँ से बॉडी आई, ये घूम के यहाँ से. दिस इज टेल ऑफ द caudate nucleus. तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे बॉडी एंड टेल ऑफ द. ये यहाँ से बॉडी होगी, टेल, और सबसे ऊपर में आए तो यहाँ पर हेड हो गया. तो हेड, बॉडी एंड टेल. तो हेड, बॉडी एंड टेल ऑफ द caudate nucleus. इसी के पास में है amygdaloid body. यहाँ पर देखें तो ये है हिप्पोकैम्पस. हिप्पोकैम्पस. नाउ डिस्कस अबाउट एंटीरियर हॉर्न. यहाँ देखिए ये है एंटीरियर हॉर्न. ये यहाँ से एंटीरियर कर्वेचर इस लेवल से देखिए तो इसके आगे का पार्ट, इतना पार्ट है एंटीरियर हॉर्न. तो अगर यहाँ से सेक्शन काटते हैं, सेक्शन फ्रॉम हियर, तो ये है कार्पस कैलोसम. कार्पस कैलोसम ऐसे आ रहा है. तो ये ऊपर भी कार्पस कैलोसम कटेगा, ये यहाँ भी जाएगा. ये कैविटी यहाँ से यहाँ तक है एंटीरियर हॉर्न. तो देखते हैं रूफ. ये है रूफ. रूफ इज फॉर्म्ड बाय कार्पस कैलोसम. दिस इज कार्पस कैलोसम. ट्रंक ऑफ द कार्पस कैलोसम इज फॉर्म्ड द रूफ. दिस इज कैविटी एंटीरियर हॉर्न. Floor. This is floor. Floor is formed by rostrum. This is rostrum which form the floor. तो कार्पस कैलोसम का ही रोस्ट्रम पार्ट यहाँ पर है, क्योंकि फ्लोर बना है. एंटीरियरली ये आगे की साइड में है. यहाँ से ये एक्सटेंशन है, तो इसके आगे क्या है, ये है. दिस इज जेनु. जेनु ऑफ द कार्पस कैलोसम. तो कार्पस कैलोसम ऊपर भी है, नीचे भी है, आगे भी है. तो ऊपर है ट्रंक ऑफ द कार्पस कैलोसम, आगे है जेनु ऑफ द कार्पस कैलोसम, और नीचे है रोस्ट्रम ऑफ द कार्पस. एंड मीडियली ये है सेप्टम पेलिसिडम. ये है सेप्टम. ये मीडियल साइड में है. ये दोनों को डिवाइड कर रहा है, दोनों के बीच में है. तो दिस इज सेप्टम पेलिसिडम. मीडियल साइड इज सेप्टम पेलिसिडम. एंड ऑन लेटरल साइड में caudate nucleus होगा. हेड ऑफ द caudate nucleus. लेटरल साइड में हेड ऑफ द caudate nucleus. अगर इसी को इस डायग्राम में देखिए तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. ये देखिए, ये ऊपर है, दिस इज कार्पस कैलोसम. ये नीचे है कार्पस कैलोसम, और ये मीडियल में सेप्टम पेलिसिडम, और ये लेटरल साइड में हेड ऑफ द caudate nucleus.
तो ये है एंटीरियर हॉर्न ऑफ द लेटरल, एंटीरियर हॉर्न ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल। इसी को और सिंप्लीफाइड में देखें तो ये दिख रहा है कार्पस कैलोसम, रोस्ट्रम ऑफ द कॉर्निक इसी का पार्ट है। और ये आ रही है कार्डियक न्यूक्लियस, सेट ऑफ द कार्डियक न्यूक्लियस। तो ये है द कैविटी ऑफ एंटीरियर हॉर्न। सेंट्रल पार्ट, अगर यही सेक्शन सेंट्रल पार्ट से लेते हैं तो क्या होता है, ऊपर है कार्पस कैलोसम, सेप्टम पेरिसिडम, ये कॉर्निक्स, यहाँ कॉर्निक्स आ जाएगा। यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखें तो कार्डियक न्यूक्लियस हो जाएगा। कार्डियक न्यूक्लियस होता है, थैलेमोस्टेट वेन होती है, स्टेट टर्मिनलिस। देखते हैं, it lies in the parietal lobe. Roof is formed by, roof is formed by carpus callosum trunk. The floor is formed by, here is floor. The floor यहाँ से यहाँ तक होगा, floor is formed by sloping from lateral to medial side. यहाँ lateral से medial side में ये पूरा floor है, कौन बनाता है? Body of the cardiac nucleus, ये है body of, वहाँ head आपने देखा था, यहाँ पर नीचे जा रहे हैं तो head के बाद body आ जाएगी। तो body of the cardiac nucleus, अपर सरफेस ऑफ द, यहाँ बॉडी हो गया, ये है थैलेमस, ये है थैलेमस, तो अपर सरफेस ऑफ द थैलेमस। और ये इसके बीच में ये आपको दिख रहा है, ये कोराइड प्लेक्सस, और ये पार्ट है फॉर्निक्स, फॉर्निक्स। मीडियल साइड में सेप्टम पेलिसिडम, बीच में सेप्टा है, दैट इज सेप्टम पेलिसिडम। ये सेप्टा दोनों को डिवाइड कर रहा है, सेप्टम पेलिसिडम। लैटरल साइड में देखिए, नैरो एरिया एज मीटिंग ऑफ द रूफ है। ये लैटरल साइड में देखें तो ये थोड़ी सी एरिया है जहां रूफ और फ्लोर मिल रहे हैं। दिस इज लैटरल। तो यहाँ से यहाँ तक ये इंफीरियर लैटरल, फ्लोर इज इंफीरियर लैटरल। तो ये हो गया, यहाँ पर रूफ हो गया, यहाँ से यहाँ तक फ्लोर हो गया। Floor and lateral wall both you can say, and this is medial wall, this is floor and lateral wall. इसमें देखिए, ये है रूफ, बाद में कार्पस कैलोसम, मीडियली बाय सेप्टम पेलिसिडम, एंड फ्लोर यहाँ से यहाँ तक इंफीरियर लैटरल बाउंड्री, ये यहाँ से यहाँ तक। तो ये है कार्डियक न्यूक्लियस, स्ट्राया टर्मिनलिस, थैलेमोस्टेट वेन, थैलेमस, और यहाँ से ये पार्ट आया टीला कोराइडिया का, कोराइड कार्पस, टीला कोराइडिया, और ये है बॉडी ऑफ द कॉर्निक्स। तो यहाँ से यहाँ तक दिस पार्ट इज फ्लोर। नाउ पोस्टीरियर हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न, दिस इज कार्पस कैलोसम के सबसे पीछे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, ये स्क्रीनियम पार्ट ऑफ द कार्पस कैलोसम। यहाँ ये सेक्शन में कटेगा, इसलिए स्क्रीनियम पार्ट ऑफ द कार्पस कैलोसम। ये इसी में होता है फॉर्सेप्स मेजर, ये फोर्सेप्स, इसी का पोस्टीरियर फाइबर्स यहाँ आएंगे, फॉर्सेप्स मेजर, ये बल्ब ऑफ द पोस्टीरियर हॉर्न बनाएंगे। यहाँ पर ये एलिवेशन है, दिस इज बल्ब, ये फाइबर्स कार्पस कैलोसम की यहाँ आ जाकर के बना देंगे बल्ब, दिस इज बल्ब ऑफ द पोस्टीरियर हॉर्न। और यहाँ पर है कैल्कराइन सल्कस, ये सल्कस है, यहाँ पर देखेंगे कैल्कराइन सल्कस, और कैल्कराइन सल्कस की वजह से एक एलिवेशन आ रहा है, दिस इज कैल्कराइन सल्कस, ये दिखाई, ये कैल्कराइन सल्कस, इसकी वजह से यहाँ एक एलिवेशन है। और ये है पोस्टीरियर हॉर्न, इसमें दो एलिवेशन दिख रहे हैं, एक तो यहाँ पर है अंदर की तरफ एलिवेशन, क्योंकि यहाँ पर है बल्ब ऑफ पोस्टीरियर हॉर्न, एंड दिस बल्ब ऑफ पोस्टीरियर हॉर्न इज फॉर्म्ड बाय फॉर्सेप्स मेजर, फॉर्सेप्स मेजर फाइबर्स, ये कमिशनल फाइबर्स एंड पार्ट ऑफ द कार्पस कैलोसम। तो ये फाइबर्स यही इस लीफ की पार्ट के यहाँ आ जाते हैं, ये इसकी वजह से ये इतना पार्ट उठ जाता है, जैसे ये बल्ब ऑफ पोस्टीरियर हॉर्न। और इसमें देखिए ये है कैल्कराइन सल्कस, कैल्कराइन सल्कस यहाँ पर है, बनाता है कलकार एविस, तो ये इसके फ्लोर हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक ये स्क्रीनियम के फाइबर्स ऐसे ऐसे गए। ये है टाइपटम ऑफ दी
कार्पस कैलोसम, इनको नाम है टैपेटम, टैपेटम ऑफ द कार्पस कैलोसम। यहाँ आते हैं आपके रेडिएशन, ये इसकी रूफ बनाते हैं। तो ये है पोस्टीरियर हॉर्न, इसके फ्लोर और रूफ ये। तो इसको देखते हैं। It lies in the occipital lobe, roof, lateral wall and floor is formed by area are formed by tapetum of the corpus callosum। ये है tapetum of the corpus callosum, ये बना रहा है lateral wall भी बना रहा है, ये टाइप की है एक्सटेंशन है, ये posterior horn, इसका lateral wall भी बना रहा है, roof बना दिया, floor भी बना दिया। मीडियल साइड में देखिए तो मीडियली क्या है, there are two elevations, कौन कौन से हैं, bulb of the posterior horn, this is bulb of the posterior horn, this is formed by forceps major, ये इसके फाइबर्स कार्पस कैलोसम की forceps major है। and calcaria is produced by calcarine sulcus, ये है calcaria, ये calcarine sulcus। सेम थिंग, इसी को यहाँ पर सेपरेट कर दिया, ये है टैपेटम, टैपेटम की जो कि रूफ बना रहा है, लैटरल वॉल एंड फ्लोर बना रहा है, एंड मीडियल वॉल इज फॉर्म्ड बाय, ये है बल्ब, यहाँ पर है फॉर्सेप्स मेजर फाइबर, और ये है कल्कराइन सल्कस, इस कल्कराइन। नाउ inferior horn, inferior horn, if you see this part is the inferior horn here, so from here to here this is inferior horn, ये इसकी inferior horn में देखें लेफ्ट साइड में ये है टैपेटम, कार्पस कैलोसम का पार्ट टैपेटम है, यहाँ पर दिख रहा है। ये कोलेटरल एमिनेंस, दिस इज कोलेटरल सल्कस, ये है, इसके अपोजिट में इमिनेंस है, दिस कोलेटरल एमिनेंस, और ये यहाँ पर आ रहा है हिप्पोकैम्पस, ये हिप्पोकैम्पस है, ये है इसका फिम्ब्रिया, और यहाँ पर ये पैरामीटर के फोल्ड में कोराइड फिशर्स है, कोराइड प्लेक्सस बना रहे हैं, है? और इसके ऊपर यहाँ पर है टेल ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड स्ट्रेया सेमीसर्कुलेंस। So it lies in the temporal lobe, roof is formed by tapetum, the hair is roof is formed by tapetum, tail of the tapetum, tail of the caudate nucleus, the roof is formed by tapetum, tail of the caudate nucleus, यहीं पर होगा amygdaloid body and stria terminalis, floor is formed by hippocampus। तो यहाँ पर देखिए ये है हिप्पोकैम्पस, ये दिख रहा है हिप्पोकैम्पस, hippocampus from the floor, fimbria of the hippocampus and collateral eminence, fimbria of hippocampus and collateral eminence, lateral wall, this is lateral wall is formed by, here is lateral wall, this is formed by tapetum of the corpus callosum। तो रूफ ये हो गया जो कि tapetum, tail of the caudate nucleus, amygdaloid body and stria terminalis, ये इससे बन रहा है, ये है लेटरल वॉल, टैपेटम बना रही है, एंड मीडियल वॉल या फ्लोर इज फॉर्म्ड बाय हिप्पोकैम्पस, फिम्ब्रिया एंड कोलेटरल इमिनेंस। कोलेटरल इमिनेंस ये है, कोलेटरल सल्कस के अपोजिट में है कोलेटरल इमिनेंस, हिप्पोकैम्पस, फिम्ब्रिया। ये इंफीरियर हॉर्न का सेक्शन इसमें देखिए, तो ये जो सेक्शन गया है ये है बॉडी के लेवल से, एंड हियर इज सेक्शन, ये सेक्शन सेम टाइम यहाँ पर ये आता है, ये है हिप्पोकैम्पस, ये है कोलेटरल सल्कस, तो कोलेटरल एमिनेंस हो गया, तो मीडियल वॉल हिप्पोकैम्पस, कोलेटरल एमिनेंस, एंड लैटरली हियर यहाँ पर हो जाएगा टैपेटम, टैपेटम एमेग्डलाइड बॉडी। इसी का और सिंप्लीफाइड में देखें तो ये है हिप्पोकैम्पस, ये पूरा यहाँ से, दिस इज द inferior horn of the fourth ventricle, in inferior horn of the lateral ventricle, inferior horn of the lateral ventricle ये है। तो यहाँ देखिए collateral sulcus, collateral eminence, and ये hippocampus, from the hippocampal eminence here, hippocampus, and here is fimbria, और ये देखिए ये फोल्ड ऑफ द पायामेटर, यहाँ पर प्लेक्सस बना रहा है, ये इसके अंदर नहीं गया।
इसका रूफ है, रूफ इज फॉर्म्ड बाय ईयर, द स्ट्रा टर्मिनलिस, tail of the caudate nucleus, amygdaloid body, and tapetum. Lateral wall is formed by tapetum. Now, clinical importance. If there is any obstruction in the flow of the CSF to the ventricles, then condition appears, that is hydrocephalus. It is caused by impaired cerebrospinal fluid production, flow, or reabsorption. The most common cause of hydrocephalus is a flow obstruction, which is hindering the free passage of the cerebrospinal fluid through the ventricular system and subarachnoid space. क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके? स्टेनोसिस ऑफ द सेरेब्रल एक्विडक्ट. अगर सेरेब्रल एक्विडक्ट में स्टेनोसिस हो जाए तो क्या होगा? थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में सीएसएफ का फ्लो रुक जाएगा. ऐसे ही फोरामेन मोनरो में अगर इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन में हो जाए, लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में नहीं आएगा. तो ये पैसेज नहीं हो पाएगा. तो जहां प्रोडक्शन हो रहा है इस एरिया में, तो यहाँ लेटरल वेंट्रिकल इनलार्ज हो जाएंगे अगर फोरामेन मोनरो पे है. अगर सेरेब्रल एक्विडक्ट में है तो लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल इनलार्ज हो जाएंगे. तो इन सब की वजह से हाइड्रोसेफेलस कंडीशन होती है इन इन्फेंट्स में. एंड इन एडल्ट intracranial pressure is increased. This can be secondary to tumor or hemorrhage infection or hemorrhage infections and the congenital malformation. It can also be caused by overproduction of the cerebrospinal. So this is all about the ventricles of the brain. आज ही शाम को आप लोग जरूर देख लीजिएगा एक बार वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन. इस सारे पार्ट को डिटेल में यूट्यूब पर हमने अपलोड कर दिया है. इसको आप देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको पढ़ने की जरूरत है. और वाइवा में भी बहुत पूछा जाता है. जो भी एग्जामिनर होते हैं अगर ब्रेन पर वाइवा लेते हैं तो ये सेक्शन में दिखता है इजीली, तो इसलिए इसका वाइवा जरूर लेते हैं. तो आपका ध्यान देते हुए लगे रहिए, आपको पढ़ाई में जरूरी है ना. ठीक. हो गया भाई, बंद कर दीजिए.